أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سب سے پہلے کچھ میں آپ سے کوشچن نعت کے حوالے سے پوچھوں کہ نعت کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا؟ یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ بچپن میں ہی میں دیکھتی ہوتی تھی ام حبیبہ کو اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو، تو ان کو دیکھ کے پڑھنے کو دل کرتا تھا، تو ان کے ساتھ ہی جو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہوا، بس وہاں سے پھر سٹارٹ لیا. پھر آپ کو پتہ ہے اسکول میں اسمبلی میں پڑھا کرتی تھی، بس وہ پھر ایک سلسلہ چل پڑا الحمدللہ جو ابھی تک جاری ہے. اور ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ
آج آپ حمد باری تعالیٰ سے ہی آغاز کریں اور ہمارے ناظرین کو حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. جی کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں ایک ہی صدا رہی ہے برابر ایک ہی صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا اور تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا اور تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے اشعار اتنے خوبصورت ہیں اس کلام کے کہ جب جو لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ یہ کلام پڑھتے ہیں کیفیت بن تو جاتی ہے بالکل ایک کیفیت تعلیم ہو جاتی ہے یہ مدد کہتا ہے کہ بھائی یہ جملے اور میں بالکل یہ کیفیت بن جاتی ہے. اچھا میں آپ سے یہ اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نعت باقاعدہ بھی آپ نے کسی سے سیکھی ہے کسی استاد سے یا کیا اس حوالے سے؟ میں آپ کو اصل بات بتاؤں شروع میں تو مجھے ان چیزوں کا اتنا زیادہ تھا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں قاری صاحب کو جی بالکل اور ام حبیبہ کو سنتی تھی تو جیسے انہوں نے پڑھا ویسے میں نے پڑھ لیا. تو پھر جو اسکول میں اساتذہ تھے وہ
बता दिया करते थे, कोई गलती होती थी तो यकीनन वो निकाल दिया करते थे। तलफ़्फ़ुज़ की गलती, जी बिल्कुल। ऐसे सवाल से आपको पता है ज़बर ज़ेर की ऐसा गलती, ही। उर्दू में तो बहुत ज़्यादा हम लोग गलतियाँ कर लेते हैं, तो वो बता दिया करते थे। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कभी किसी उस्ताद से सीखना चाहिए, लेकिन जो वक्त गुजरता गया माशाल्लाह इतना ज़्यादा आपको पता है हर चीज़ डेवलप हो गई है, तो अब मुझे लगता है कि हाँ हमें वाकई ही ये चीज़ें हमें सीख कर आगे आना ऐसा है, चाहिए। क्योंकि नात एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा फ़न है, ठीक है। तो किसी भी फ़न को बाकायदा यानी उस पर अबूर या गिरफ्त उसी सूरत में हो सकती है कि उसके जो माहिर हैं उनसे सीखा जाए। जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर बात है कि ये सीखना भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, शौकिया तौर पे पढ़ना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अल्फाज का दरमियान में टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर किस चढ़ाओ, फिर तरन्नुम, सुर, सारी वो लय, और फिर नात जब आप किसी उस्ताद के पास जाएंगे तो वो आपको ये बुनियादी तौर पे गाइड करेगा कि नात पढ़ते हुए कलाम का चुनाव कैसा होना चाहिए, किस जगह पे कौन सा कलाम आप पढ़ सकते हैं, उर्दू कलाम कहाँ पढ़ना चाहिए, पंजाबी कलाम के इंतखाब कहाँ पे होना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस हवाले। फिर अरफाना कलाम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पंजाबी बड़ी वो ठेठ पंजाबी है, जी बिल्कुल, तो उसमें वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत मुश्किल है, वो तो हम लोगों जैसे लोगों को तो समझ में नहीं आता। ऐसा ही है। तो ये जिन शख्सियात की आप नाम ले रहे हैं, ये तो हम भी जब छोटे से थे तब से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुनते आ रहे हैं माशाल्लाह, अभी तक उन लोगों को ऐसा ही है। जब भी वो ये इन कलामों में एक ऐसी तासीर पाई जाती है कि जब भी कोई पढ़ता है या जब भी ये कारी साहब पढ़ते हैं या मोहतरमा उम्मे हबीबा पढ़ती हैं तो पता चलता है कि ये आज पढ़ा गया और हमारे लिए पढ़ा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। और मैं तो जब भी कारी साहब को सुनती हूँ तो मुझे अभी भी अपना बचपन याद आता है, और वो बिल्कुल वही कि हम जब छोटे थे तो हम इधर बैठते थे और यहाँ पे ये सुनते थे, और ऐसे मतलब हम लोग वो सारी चीज़ें मुझे वही याद आना शुरू हो जाती है। कारी साहब के यानी मिसाल के तौर पर ज़हीर मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम, जी बिल्कुल, वो आज सुन लें या आज से उनका 20-30 साल पहले का पढ़ा हुआ सुन रहे, पता नहीं चलता कि भाई इतना यानी वक्त गुजरने के बाद भी ये इस कलाम में यानी कुछ हुआ। बिल्कुल, और वो इतनी तासीर है उनके बिल्कुल ऐसे ही और उनकी बंदा वहाँ पहुँच जाता है, बंदा कैफियत में वहाँ पहुँच जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आज आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नाज़रीन को रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई ऐसे नातिया अशआर सुना दें ताकि हमारे नाज़रीन का भी लुत्फ़ और समाअत दोबारा घर में बैठे हुए रमज़ान की जो बहारें हैं वो बिल्कुल दोबारा हो जाए ज़रूर। खुशबुए पैगम आती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, खुशबुए पैगम आती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, क्यों सांसें महकी महकी हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, क्यों सांसें महकी महकी हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। रमज़ान की बहारें आई हैं, बख्शिश का मुजदा लाई है। रमज़ान की बहारें आई हैं, बख्शिश का मुजदा लाई है। रहमत की घटाएं बरसी हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, रहमत की घटाएं बरसी हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। मशगूल दरूदों में हूँ कभी
मदीने की नजरें हैं गुंबदे हजरा पर, हाथों में खजूर मदीने की, अफ्तार की घड़ियां आई हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, अफ्तार की घड़ियां आई हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, और अफ्तार में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना, अफ्तार में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना, जन्नत की हवाएं चलती हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, जन्नत की हवाएं चलती हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, क्यों सांसें महकी महकी हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। तो यकीनन लगता है कि आप वहीं पे बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल मस्जिद नबवी के सामने, क्योंकि जब मैं गई थी तो मेरी इसी टाइप की कैफियत थी। और मैं जब अभी भी जब मैं ये कलाम पढ़ती हूँ, जब भी खास तौर पे रमज़ान शरीफ में जब ये पढ़ती हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल वहीं पे सामने दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने बैठी। ऐसे ही देखिए कि रमज़ान शरीफ की तो एक अपनी बरक़ात है, लेकिन अगर यही सुनहरी लम्हात दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु में हमें मुयस्सर हों, तो फिर मेरे ख्याल में ज़िंदगी से ज़िंदगी का लुत्फ़ ही और है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन, और बार बार नसीब फरमाए, क्योंकि जब आप एक बार जाते हैं तो फिर दिल करता है कि आप बार बार वहाँ की हाज़िरी। ये तो एक ऐसी तड़प है, ऐसी यानी कि चाहत है जो कभी ज़िंदगी में मतलब कि पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जब भाई मैं आपको ये बात बताऊं कि जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, तो आपकी कैफियत कुछ और होती है, लेकिन जब आप पहली बार वहाँ जाके फिर वापस आते हैं, तो उसके बाद जो आपकी मोहब्बत है, आपका इश्क है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और फिर आपके नात पढ़ने में, आपकी हम्दो सना करने में बहुत ज़्यादा बंदे को पता होता है कि वो बंदा वहाँ पहुँच जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कैफियत बदल जाती है, वहाँ पहुँच जाता है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब और कुल सलाफती आर्ट्स रावलपिंडी से हम बराह रास्त ये नशरियात आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ खित्ते पोटवार की बहुत मारूफ आवाज़ मोहतरमा नाज़मा शौकत साहिबा मौजूद हैं। इनसे मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे और नातिया कलाम भी सुनेंगे। मोहतरमा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, घरेलू क्या मसरूफियात होती हैं, या इस हवाले से? सहर और इफ्तार का आपको पता ही है कि वो तो घर में आपको बनाना पड़ता है, तमाम ख़वातीन को ये काम तो आना चाहिए और करना भी पड़ता है, तो बस मैं भी उसी तरह मसरूफ़ होती हूँ। आजकल के दिनों में तो मैं थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घर में ही, आपको पता है, स्टक हुए हैं, तो थोड़े बाहर के जो अवामी प्रोग्राम्स हैं वो भी बंद हैं। जी बिल्कुल, तो उसकी वजह से घर वालों को भी ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है और इबादत को भी ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, और मैं समझती हूँ ये भी हम लोगों की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा मौका अता फरमाया है रमज़ानुल मुबारक का कि हम इसकी रहमतें बरकतें हासिल कर सकें। इन सातों के से हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं इससे ही घर पे ही होती हूँ, आजकल तो मैं घर पे ही हूँ। वैसे होता है कि हम लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा इफ्तार हमारी बाहर होती है, मिलाद शरीफ होते हैं, जी बिल्कुल, तो फिर काफ़ी मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है घर वालों को टाइम देना, बच्चों को खास तौर पे टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है।
آج کل تو مصروفیت ذرا کم ہے الحمدللہ، چلے بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، گھر والوں کو بھی، اور اپنے اپنے جو بھی عبادات بھی یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ریلیکس ہو کے بندے تمام تر مصروفیات سے بالا تر ہو گئے. میں چاہوں گا کہ ایک نعتیہ کلام کے چند اشارہ ہمارے ناظرین کو ضرور انشاءاللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر لوں نظارہ کر، پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر، پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو. روتا ہوا پھر آؤں داغِ جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھر آؤں داغِ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر، پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو. آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ کل پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.